Okay. So once again, good morning everyone. Welcome to today's class. Okay. So after yesterday class or in yesterday class, basically what we discuss is specifically about the tables. So table is the heart of a service now, I can say. Everything which you're able to do is coming from the table. But did you guys notice something? Because this is a tool which is developed by the human being. And we make this tool so smart that it can provide services to us. But do you guys think one point here? Let me open this. I search for the incident, and this is my application. These are my modules. Did you guys think when I click on the create new, why this page has been opened? Okay, let me remove this personalization यार. Otherwise मजा नहीं आता इसमें. I'll put everything because these are the like impact urgency are the core for these processes. Okay. So did you guys notice when I click on this, always a new form open for me. When I click on this, a list view open for me. How this has been defined? Where this has been defined? Any idea? Don't say कि अतुल यहाँ create नहीं लिखा तो मतलब create का मतलब कि नया ही बनाना है. That is only English. मैं अपना नाम लिख देता हूँ और फिर भी ये पेज ओपन होगा मेरा. Then assign to me only list view with this filter. Why? How? Open list view only filter change. Open unassigned list view unassigned is empty. So these are the options available in my table when I create a module. Let's see from where it comes. क्योंकि when I say you need to create one application, definitely you should know कि Atul, when I am adding someone in my gym entry, so it should create a new, add a member. It should come come something like this. ठीक है? If you want to open a table directly, if you are a what I can say, अगर आप एक अच्छे डेवलपर है ना, तो आप कभी भी यहाँ जाके सर्च नहीं करते. आपको टेबल्स के नाम याद हो जाते हैं. जैसे लेट मी शो यू, मुझे चेंज रिक्वेस्ट का टेबल ओपन करना है. ठीक. हो गया मेरा चेंज रिक्वेस्ट का फॉर्म ओपन. राइट. So you guys need to be remember the tables if you are actually a developer. एक मैं और बताता हूँ, जैसे लोकेशन एक टेबल होती है मेरी. लोकेशन क्या है? हाँ, लोकेशन. राइट. सो दिस इज अ टेबल फॉर मी. यूजर टेबल थी ना, sys_user. राइट. सो जो हमने सिर्फ टास्क टेबल कल देखी, वो तो सिर्फ एक एक एग्जांपल था. You can go and check the user table, group table, department table, location table, choice table. ठीक है. बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये सब चीजें कहां से आती हैं. मैंने यहां क्लिक किया तो कैसे ये वाला पेज मेरा ओपन हुआ. लेट मी ओपन द मॉड्यूल, क्रिएट न्यू, जस्ट टेकिंग एग्जांपल. क्योंकि कल भी हम ये डिस्कस कर रहे थे. राइट. कल हमने टेबल डिस्कस किया. टेबल के अंदर हमने क्या बनाया, एक मॉड्यूल बनाया. इसका नाम क्या है, क्रिएट न्यू. किसके अंडर दिखना चाहिए ये वाला मॉड्यूल? मैंने कहा इंसिडेंट के अंदर दिखना चाहिए. वो था ना, योर नेम, फादर स्लैश
मदर स्लैश वाइफ ऑफ स्लैश डॉटर ऑफ, ऐसे हम लिखते हैं ना वो, ये वो चीज है कि भाई आपके फादर, आपके जो एक लेवल अप है वो कौन है, मैंने कहा इंसिडेंट के अंदर दिखना चाहिए ये वाला। ओके, ऑर्डर किस सीक्वेंस में दिखना चाहिए ये फ्रॉम द सर्टिफिकेशन पर्सपेक्टिव दिस इज अ गुड क्वेश्चन, और इसका अलग अलग पर्पस रहता है। इफ इट इज ऑन द फॉर्म, like on the module form, what the order define the sequencing of that module in the application. If I change the order for the 2000, it will be at the last. ठीक है। हिंट मतलब कि जो यहां पर लिखा आता है आपका, दिस इज माय मॉड्यूल, ठीक है। एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट आई एम क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन ऑफ द ग्लोबल, इट विल बी अ ग्लोबल एप्लीकेशन फॉर्म में। डिस्प्ले नेम क्या दिखना चाहिए यहां पर, क्रिएट न्यू। Now it come to the two sections, visibility and link type. Visibility means who can access this table, or who can access, no, I'll not say the table specifically. Now we are coming to the next part, who can access this module specifically. I said जिसके पास ITIL का रोल होगा या जिसके पास SN incident right का रोल होगा, only those person can see this option. अगर मैं शिल्पी के राइट उसमें यूजर डोमेन में से, यूजर में से अगर मैं एडमिन हटाकर और आईटीएल हटाकर सिर्फ यूजर एडमिन दूंगा तो उसको ये रोल, ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि वो रोल यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ मैंने। सो इट इज टोटली अप टू यू। और ये इसका पर्पस क्या रहता है, टू प्रोवाइड एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। सिंपल एग्जांपल, यू डोंट वांट एनीवन गो टू योर लिविंग रूम, मुझे पसंद नहीं है भाई। अगर कोई गेस्ट जिसको मैं बेशक मैं जानता हूं उसको, बट आई डोंट वांट दैट ही और शी नीड एक्सेस माय लिविंग रूम। बाहर से बात कर लेते हैं, लॉबी में बाहर बालकनी में बैठाओ, वहीं से बात कर लो। ओवरराइड एप्लीकेशन मेन्यू रूल, show this module when the user has specific rule, otherwise user must have the role specified by the both application menu and the module. मतलब कि अगर मैंने, ये क्या कह रहा है, एप्लीकेशन मेन्यू एंड द मॉड्यूल, अगर मैंने एप्लीकेशन को ही रोल दे दिया ITIL या एडमिन, तो वो इसको ओवरराइड कर देगा। फिर इनहेरिटेंस, अगर किसी के फादर ने उसको प्रॉपर्टी दे दी और कहा कि ये आज से आने वाले सभी पीढ़ियों के लिए रहेगा, so it means it doesn't matter you mention or not, your son also will get the same property again. ठीक है, so वो उसके लिए active, a very important. Active says that is this module is in use or not. जैसे let's take example, there is a e-commerce website, उसकी साइट पर पहले, अब जैसे बात करें, हाँ जैसे बात करते हैं पेटीएम की, पहले क्या था जब पेटीएम नया आया था, ओके, in the application, in the Paytm app, you go and call to the executives as well. अब उन्होंने क्या किया, वो ऑप्शन हटा दिया, they just put the FAQs, ये लाइव चैट खत्म, so they inactivate that part. So if I uncheck this module will not available for me to use. I'm saying not available for use, but it still exists, so let it be active always. Any doubt till this? Atul, just Yes, one Yogesh. question. So when you uncheck the active, so will it be visible and I will not able to click on it and do No, something, or will it it be will not visible. invisible? It will not visible. Okay, understand. ठीक है ना? So active is basically a attribute which indicates this particular record, this particular application, this particular module is available for use or not. In incident, if active is false, it means incident is closed state.
You cannot do anything on the incident now. But in module, if active is false, it means it will not available for use. Let's do a practical on this part. Save. कुछ हुआ नहीं है, मैंने वो किया। हाँ, ये देखो, राइट, गॉन. Okay, okay. Let's have a active tree. Okay. Now the next point which is important, जो अभी हमने डिस्कस किया कि जब मैं क्लिक करता हूं क्रिएट न्यू के ऊपर, तो मेरा न्यू वाला पेज कैसे खुल जाता है. सो दिस इज कॉल्ड द लिंक टाइप. सर्टिफिकेशन के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आप डेवलपर हैं, यू शुड नो कि मुझे किस मॉड्यूल पे क्या ओपन करना है, कौन सा फॉर्म ओपन करना है. ठीक है. जनरली इसको हम चेंज नहीं करते until unless आप अपना कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन बना रहे हैं, आप अपना कोई नया मॉड्यूल बना रहे हैं, देन इट इज अप टू यू. लेकिन जो आउट ऑफ द बॉक्स है हम वही रहने देते हैं. ठीक है. यहां देखो, यहां मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं. राइट. असेसमेंट, कंटेंट पेज, डॉक्यूमेंट लिंक, होम पेज, HTML with arguments. It's like I'm calling a function and passing some variables with the same. List filter, list of record, map page, new record. ये ना मेरा new record वाला. Run a report, script, search screen, separator, single record, survey, timeline, and URL from argument. Because ServiceNow is so smart here, they are doing the stuff from the argument side. This is a complete technical part. True sysparam incident list 2, sysparam active 2. So they are putting a table. They are putting some arguments. Incident dot do sys id is -1. I guess should be active. Sysparam query is equal to active is true, and sysparam stack is equal to incident underscore list do. I'm not sure that how this is be working. Maybe what they are saying, suppose you want to open the incident table. तो वो चीज इसके लिए उन्होंने शायद ये कोड लिखा कि अगर आपको पेज ओपन करना है इससे लिंक से, तो आपको ये वाला चलेगा. अगर मैं ये लिखता हूँ इंसिडेंट अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर डू, तो मेरा लिस्ट भी ओपन हो जाएगा. तो वो इट इज प्योरली कोडिंग पार्ट है. जनरली मतलब कि इफ यू आर ए वेरी गुड व्हाट आई कैन से डेवलपर एंड यू नो द पर्पस, मैं इसका भी ट्राई करता हूँ आइडेंटिफाई करने इसका पर्पस, मतलब इसका मतलब क्या है आर्ग्यूमेंट्स का. ठीक है. तो वो चीज जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि अगर आपको ये वाला इंसिडेंट का मॉड्यूल, इंसिडेंट टेबल को ओपन करना है यूआरएल से, जैसे हम ओपन कर रहे हैं, सो आपके पास ये दो ऑप्शन है. इन दोनों में से आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो. ठीक है. लेकिन जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका यही खुलेगा. ठीक. अब बात क्या करते हैं, क्योंकि ये सब चीजें प्रैक्टिकल वाली हैं, हम क्या करते हैं, हम अपना एक टेबल बनाते हैं सबसे पहले. ठीक. टेबल का क्या ऑप्शन होता है टेबल बनाने के लिए? कहाँ जाना पड़ेगा मुझे, ईश्वरी? बताओ क्या सर्च करना है मुझे यहाँ पे. मुझे अपना टेबल बनाना है.
टेबल ही डालना पड़ेगा ना सर। कहाँ जाऊं बताओ, जी बताओ कहाँ जाऊं। बताओ कहाँ जाऊं, इतने ज्यादा बहुत सारे टेबल्स दिख रहे हैं मुझे, तो मुझे कौन सा टेबल पिक करना है। इंसिडेंट थोड़ा, वो तो मॉड्यूल एप्लीकेशन है मेरी, मैं तो टेबल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। बताओ क्या पिक करूं जो कि मेरा टेबल बन जाए। ये टेबल्स एंड कॉलम सिस्टम डेफिनेशंस में सर। यस, सो बोलो ना सिस्टम डेफिनेशन में टेबल्स में जाओ सर। ये इसलिए जरूरी है कि आपको पता हो कि कल आपको अगर टेबल बनाना है तो कैसे बनेगा वो टेबल मेरा, कहाँ बनेगा वो टेबल मेरा। क्लिक ऑन द टेबल्स हियर। ठीक है, देखो सारे टेबल्स कहाँ पर स्टोर होते हैं, कौन से टेबल में स्टोर होते हैं सारे टेबल का, हमने देखा था ना, ये रहा sys db ऑब्जेक्ट। इस टेबल में जाके सारे टेबल स्टोर होते हैं। ठीक, चलिए हम बनाते हैं अपना नया टेबल, अब न्यू लेबल। ओके, सर्विस नाउ रिकमेंड क्रिएटिंग कस्टम टेबल इन स्कोप एप्लीकेशन टू लर्न मोर फॉर दिस वन। वो कहते हैं भाई अगर आपको कुछ नया बनाना है, कोई अपना स्कोप एप्लीकेशन बना, स्कोपिंग क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, तो आप कस्टम टेबल्स फिर वहीं जाके बनाओ। आई प्रेफर कि अगर आपको कुछ नया बनाना है तो सिर्फ कस्टम इसके लिए कस्टम स्कोप एप्लीकेशन में जाके बनाओ, ग्लोबल में कुछ मत बनाओ। बट मुझे तो यहाँ पर R&D करनी है अभी अपनी। ठीक है, तो वो चीज लेबल स्नो, देखो आगे अपने आप u_snow_batch2, ये मेरी टेबल का नाम है। ठीक है, विल इट बी माई एप्लीकेशन ऑल्सो और नॉट। Yes. नहीं, बाय डिफॉल्ट यस, बट यू कैन चेंज इट। ठीक है, शैल आई एक्सटेंड वन टेबल जो हमने कल डिस्कस किया था, या आपको बिल्कुल खाली टेबल चाहिए। अतुल अभी क्या बोला आपने एप्लीकेशन रिलेटेड? मतलब कि जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो मॉड्यूल दिखता है इंसिडेंट वाला, हाँ राइट, हाँ हाँ। जो इंसिडेंट मेरी एप्लीकेशन है वो भी तो कहीं से आ रही होगी ना, हम्म। तो उसका नाम क्या होता है बाय डिफॉल्ट, जो आपकी टेबल का नाम होता है वही नाम उसका ही होता है। देखो ये देखो ना, सर्विस नाउ अच्छा। बैच 2, ये मेरा मेन्यू का नाम है, ये मेरे मेन्यू का नाम है, ये वाला का, ये टॉप पे जो दिख रहा है। ओके। ठीक है, तो वो चीज इसको एक्सटेंड करें, करते हैं इसको, हम एक्सटेंड करते हैं टास्क टेबल से। ठीक है, अगर आप अपनी कोई नई एप्लीकेशन बना रहे हैं, मान लीजिए किसी ने बोला तो मैं तो अटेंडेंस की एप्लीकेशन बना रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए टास्क के फील्ड, डोंट एक्सटेंड, मत करो एक्सटेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आपको अपने सारे नए फील्ड बनाने पड़ेंगे। इसको एक्सटेंड करने का बेनिफिट जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि आपको बने बनाए वेरिएबल्स, सॉरी बने बनाए एट्रीब्यूट्स आपको मिल जाएंगे टेबल के। ठीक है, आ जाओ, ये हो गया, पैकेज खाली रहेगा वो अपने आप सर्विस ना पिकअप करेगा। एप्लीकेशन क्योंकि मैं ग्लोबल स्कोप में हूं तो ग्लोबल में जाएगा। क्या पूछ रहे हैं वो, क्रिएट मॉड्यूल, क्या आपको इस एप्लीकेशन के लिए कोई मॉड्यूल भी बनाना है। अब कई बार होता है मुझे नहीं बनाना, अब जैसे डेटाबेस है, हर टेबल के लिए आपके पास मॉड्यूल नहीं होता। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने किसी वेबसाइट से ऑर्डर किया, ठीक है, मेरे पास सिर्फ एक ही मॉड्यूल है, ट्रैक योर ऑर्डर। उसी ट्रैक योर ऑर्डर में आपको रिफंड का भी ट्रैकिंग मिलेगा, आपको अपने ऑर्डर का भी ट्रैकिंग मिलेगा। इसका मतलब, लेकिन जब मैंने ऑर्डर की टेबल बनाई, उसका मैंने मॉड्यूल नहीं बनाया ट्रैक करने के लिए, नहीं चाहिए, मैं एक में सेट कर दूंगा सारा कुछ। तो वो चीज, क्रिएट ए मॉड्यूल, क्रिएट मोबाइल मॉड्यूल, इंपॉर्टेंट, ServiceNow has his own mobile app,
वी कॉल इट एज स्नो क्लासिक। स्नो क्लासिक के नाम से ऐप चलती है इसकी। लेट मी शो यू कैसा दिखता है ये। देखो ये कुछ ऐसा रहता है ये ऐप है। यू कैन डू योर नीडफुल हेयर। आपको इंसिडेंट्स चेक करने हैं, रिप्लाई करना है, अपडेट करने हैं, वो आप सब कर सकते हो। पता है सबसे अनदर बेनिफिट क्या है सर्विस नाउ को, जिसके लिए मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। यू कैन एक्सेस योर पर्सनल इंस्टेंस। अगर आपको लिंक याद है, देन यू कैन एक्सेस योर पर्सनल इंस्टेंस फ्रॉम योर मोबाइल फोन एज वेल इन द वेब ब्राउजर। गो एंड ओपन इट। आप ऐप भी डाउनलोड मत करो, ये ओपन करें, इसको यूज करो। एंड आई यूज दिस फंक्शनैलिटी approximately 4 to 5 years back when I was a change manager। मेरा शिफ्ट खत्म हुआ लेकिन मुझे कॉल आ गया, अरे चेंज अप्रूव नहीं हुआ, अभी अप्रूव है, थोड़ा सा आपको एक बार रिव्यू करके अप्रूव करना है। आई लॉग इन फ्रॉम मोबाइल फोन एंड अप्रूव इट, दैट्स ऑल। क्योंकि ऐप के लिए मोबाइल ऐप अगर आपकी कंपनी को लेना है, देन देयर शुड बी डील एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट होना चाहिए वहां पर, तभी आप उसको यूज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट ऑन द वेब यू कैन इजिली यूज इट। ठीक है। तो वो कहता है कि आपको इसका मोबाइल, इसका कोई वो भी चाहिए कि आपको मॉड्यूल, मोबाइल मॉड्यूल, मतलब मोबाइल में कैसा दिखेगा। मैंने कहा हाँ मुझे चाहिए ये। अगला पॉइंट, ऐड मॉड्यूल टू द मेन्यू। जैसे भाई अगर मेरे फैमिली में कोई नया बेबी आता है, ठीक है, अब ये तो है नहीं कि मैं उसका सरनेम अलग रखूंगा या उसको अलग फैमिली का नाम दूंगा। ही इज पार्ट ऑफ माई फैमिली। तो मैंने क्या बोला कि नहीं, इसके लिए कोई नया मेन्यू मत बनाओ, ये मेरी फैमिली का बंदा है, इसको मेरी फैमिली में डाल दो। बट इफ माई सिस्टर और माई कजन के घर कोई बेबी आता है, देन इट इज देयर फैमिली, उनके लिए वो अलग एप्लीकेशन है। मेरे लिए, सॉरी, उनके लिए वो सेम एप्लीकेशन मेन्यू है, लेकिन मेरे लिए वो नया एप्लीकेशन है कि हाँ भाई मेरी बेटी, मेरी बहन की बेटा है वो। सो इट इज लाइक एन अनदर मेन्यू फॉर मी। जब तक हम सब साथ थे, हम सब एक फैमिली के मेंबर थे, जैसे जैसे अलग अलग होते गए वो मेन्यूज डिवाइड होते गए। सो सर्विस नाउ गिव ए फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी कि भाई आपको यहाँ पर दिखाना है या नहीं। पहली बात तो ये, अगर नहीं दिखाना तो मॉड्यूल ही मत बनाओ, स्यापा खत्म। दिखाना ही नहीं भाई, मुझे टेबल चाहिए रिकॉर्ड पर्पज के लिए, राइट राइट। भाई अगर आपको अपने फोन में लॉगिन करना है और वह वन टाइम लॉगिन कर सकते हो, वो आप कर चुके, उसके बाद मैं आपको क्यों ऑप्शन दिखाऊं कि आपको लॉगिन करने के लिए गेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। क्या वही चीजें। अमेजॉन, एक मिनट, क्या अमेजॉन या फ्लिपकार्ट, अगर आप ऑलरेडी अमेजॉन की ऐप पे लॉगिन है, आपसे पूछेगा दोबारा लॉगिन करो? नहीं पूछता वो, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉग्ड इन है, उसमें सेव है आप उस पर। तो वो यहाँ पर वो फंक्शनैलिटी काम करता है मेरा। हाँ शिल्पी बोलो। नहीं, वही ये मुझे, अगर आप क्रिएट मॉड्यूल नहीं अनचेक रखते, देन व्हाट्स हाँ द पर्पस? अभी जो आप अमेजन वाला एग्जांपल दे रहे थे, तो अच्छा ये ठीक। क्लियर नहीं हो। आपके घर में एक पुराना बेड था, ठीक है, आपने वो बेच के नया बेड ले लिया, ठीक है, आप उस बेड को कहाँ रखोगे? उसी रूम में जिसमें से पुराना बेड गया। हाँ। तो उसके लिए कोई नया कमरा तो नहीं बनाओगे। हम्म। दैट इज अ क्रिएट मॉड्यूल। अगर आपने अपने घर में एक नया रूम बनाया है हम्म। और तब आपने बेड खरीदा है, देन यू से यस, भाई नया जो बेड आया वो नए मॉड्यूल में जाना चाहिए। वो चीज है मेरी यहाँ पे। मतलब कि कभी, नॉट कभी कभी, जब हम डेटाबेस लेवल पर काम बात करते हैं, उसमें काम करते हैं, सो ऐसा नहीं है कि आप हर चीज यूजर को दिखाते हो। कुछ टेबल्स बैकएंड में चलती है मेरी, हम्म। राइट। ओके। जैसे जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो ट्रेनिंग हमारी चल रही है उसकी वीडियोस हैं, राइट। हम्म। वो वीडियोस सिर्फ आपको यूट्यूब पे बाद में दिखती है। क्या आपको पता है कि वो वीडियोस में कैसे अपलोड करता हूँ, कहाँ अपलोड करता हूँ? नहीं आइडिया, राइट। हाँ तो जी। मैंने आपको मॉड्यूल दिया ही नहीं, मैंने क्या दिया भाई, पब्लिश होने के बाद आपको दिखना चाहिए, सिंपल सी बात है।
मैंने सिर्फ आपको वो मॉड्यूल दिया है, लेकिन बीच का जो एक मॉड्यूल था कि मैं कहाँ जाके इसको पब्लिश करता हूँ, कैसे इसको अपलोड करता हूँ, वो मैंने आपको नहीं बताया। क्योंकि कई बार हम टेबल्स बनाते हैं सिर्फ डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, मुझे यूजर से कोई एक्शन नहीं चाहिए उसके ऊपर, मुझे अपनी इंटरनल प्रोसेसिंग करनी है। ओके। ठीक, जैसे अगर आपको ब्लूटूथ से अपने फोन के ब्लूटूथ से अपने हस्बैंड के फोन पे कुछ भेजना है ब्लूटूथ के थ्रू, तो क्या होता है, उनको वो फाइल तो दिख रही है कि उनके फोन में आ गई हैं, लेकिन डिड यू नोटिस कि वो आपके फाइल्स को उठाता है, क्लाउड पे जाता है, एक टेम्परेरी स्पेस बनाता है, और वहां से फिर आपके हस्बैंड के क्लाउड पे जाता है, वहां पर एक टेम्परेरी स्पेस बनाता है, और उसके बाद उनके फोन पे एक्चुअल में भेजता है। तो क्या आपको टेम्परेरी स्पेस दिखा बीच में? नहीं दिखा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक टेबल बनाई, मैंने एक स्पेस बनाया, और मैंने बोला यूजर को स्पेस दिखाने की जरूरत नहीं है, यूजर को सिर्फ ये दिखाओ कि उसके फोन में डेटा जा रहा है, और प्रोग्रेसिंग बार दिखा दो उनको बस कि इतना डेटा ट्रांसफर हो गया आपका। क्लियर हुआ शिल्पी यहां तक? कोई डाउट? इंटरमीडिएट जो वर्क था, इफ यू डोंट वांट टू शो इट, यू क्रिएट अ टेबल फॉर दैट, बट वो विजिबल नहीं रखते। एग्जैक्टली राइट। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। आपके बेटे के एग्जाम्स है, राइट? विल यू शो टू द पब्लिक कि आपने उसको तैयारी कैसे कराई? नहीं बताओगे। चाहे आपने उसको दिन में बिठाया, आपने रात को बिठाया, आपने बुक्स से पढ़ाया, नोटबुक पे पढ़ाया, स्लेट पे पढ़ाया, ओरल पढ़ाया, वीडियो सुनाई, ऑडियो सुनाई, आप किसी को नहीं बताओगे, राइट? दैट इज द इंटरमीडिएट मॉड्यूल। मुझे नहीं बताना कि मैंने कैसे तैयारी कराई। हाँ, फाइनल एग्जाम में वो अपीयर हो रहा है, दैट इज ए मॉड्यूल, और उसको वहां अपीयर होना चाहिए, राइट? इसी के साथ अगर मैं बोलूं कि ऐड मॉड्यूल टू द मेन्यू, आप पढ़ाओ, आपके हस्बैंड पढ़ाएं, उसकी दादी पढ़ाए, उसकी नानी पढ़ाए, उसकी बुआ पढ़ाए, उसके फूफा पढ़ाए, आपकी इच्छा। अगर वो सब आपके साथ रह रहे हैं, एक ही फैमिली में रह रहे हैं, तो आप बोलोगे भाई इसी फैमिली में है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पढ़ाए। लेकिन अगर वो ट्यूशन जाके पढ़ रहा है, देन दिस इज अ न्यू मेन्यू फॉर यू। नहीं, वो तो ट्यूशन जाके पढ़ता है, घर पे नहीं पढ़ा पाते वो भी उसको, ठीक है? तो वो चीज। सो सर्विस नाउ सेज ऐड मॉड्यूल टू द मेन्यू, कि अगर मान लो मैंने ये सर्विस नाउ बैच 2 बनाया, मैं चाहता हूँ कि इंसिडेंट के अंदर ही डाल दो यार, मुझे नहीं बनाना नया अपना एप्लीकेशन, तो मैं डाल सकता हूँ उसमें भी। देखो वो आ गया, मैं इस पे क्लिक करूंगा, वो यहीं पे अपीयर हो जाएगा, राइट? तो वो चीज। बट मैंने कहा नहीं, मुझे तो नया बनाना है, क्योंकि मेरी नई एप्लीकेशन है। क्रिएट न्यू, और मेन्यू का नाम क्या होगा? बैच 2। लेट्स क्लिक ऑन द सेव फर्स्ट। देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए इसमें। बन गया टेबल, ठीक है? हमने क्या बनाया? बैच 2 के नाम से। चलो ढूंढे इसको यहाँ पे पहले, क्योंकि भाई एप्लीकेशन है, मॉड्यूल तो कहाँ मिलेगा? एप्लीकेशन नेविगेटर। आ गया बैच 2, यही बनाया था ना हमने इसका एप्लीकेशन। अतुल, ये कंटेंट फ्रेम में पूरे टेबल के नीचे स्नो बैच 2 लिखा हुआ आ रहा है ना, तो वो मॉड्यूल का नाम लिखा हुआ आ रहा है। कहाँ पे? यहाँ ये? नहीं, कंटेंट फ्रेम ओके, में हाँ, वो ऊपर टेबल के नीचे जो नाम लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, अब ये हाँ, ये भी टेबल का नाम है ना? तो टेबल का नाम तो बैच 2 है ना? नहीं 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 नहीं, बैच 2 तो मेरा मॉड्यूल एप्लीकेशन का नाम है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। शिल्पी, इफ आई टॉक फ्रॉम द योर टेस्टिंग परस्पेक्टिव, आप व्हेन यू आर डूइंग अ टेस्टिंग फॉर अ फ्रंट एंड, आप कस्टमर के लिए ऑर्डर करती हो, लेकिन वो बैकएंड में ऑर्डर -1 टेबल में जाता है। इट इज अप टू मी, राइट? ठीक है, ठीक। तो वो चीज है यहाँ पर। ईश्वरी, क्लियर हुई बात? Yes, sir. दीपेश? Yes, yes, sir. तेजल? संतोष? Yes, yes.
ओके मतलब कि अब हाँ बोलिए बोलिए। ये जो टेबल होगा वो कस्टम टेबल होगा या सिस्टम टेबल होगा? अरे कस्टम टेबल है, यू आया अंडरस्कोर यू आया, यूजर डिफाइंड टेबल, राइट। मैंने बनाया ना ये। हाँ हाँ It is not created by ServiceNow. It is not given by ServiceNow. It is created by a user. So underscore u underscore means user defined table. ठीक है, yes, sir. ये हमेशा ध्यान रखना। एंड ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि how you identify the table in ServiceNow, which parameter, which key you use. You can say if table starting from you, it means it's a user defined table, custom table है मेरी ये, and ServiceNow charge for this. Dipesh and Santosh, important point from your perspective. Before I guess this New York release, ठीक है, बाकी सबके लिए भी है क्योंकि ये अलग मतलब बहुत चलता हुआ टॉपिक था पहले, एक आज से कुछ एक साल अप्रोक्सीमेटली एक साल पहले, if I remember correctly, before New York release, not New York or maybe London release, you can create n number of, कितने भी आप कस्टम टेबल बनाओ, कितने भी यूजर डिफाइंड टेबल बनाओ, कितने भी कॉलम्स बनाओ उसमें, ServiceNow never charge for the same. But after the London release, or I guess one more release, ServiceNow announce you can create maximum 25 fields as a custom field. और उसका भी एक स्ट्रक्चर दिया उन्होंने कि किस टेबल पे आप कितने फील्ड बना सकते हो. एंड इफ यू क्रिएट मोर देन 25, इफ यू क्रिएट मोर देन 25 कस्टम फील्ड, दे विल चार्ज इट फ्रॉम यू. इसका जो डॉक्यूमेंट है वो मैं भेजता हूँ, मेरे पास पूरा लिखा है, उसको समझना थोड़ा टफ रहेगा बट दैट इज गुड टू बी रीड. श्योर. ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली जरूरी है. और ऐसा नहीं है कि हर कंपनी को यही ऐसा होता है, नहीं. इट्स अगेन डिपेंड ऑन द सेल्स पार्ट कि आपकी कंपनी का और ServiceNow का सेल्स टीम का क्या डिस्कशन हुआ, क्या एग्रीमेंट हुआ है. अगर आपका क्लाइंट बड़ा है एंड यू आर गिविंग गुड लाइसेंसेस, बोलेगा ठीक है आप 50 फील्ड भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर हो गई बात यहां तक? यस. हाँ जी. ये देखो, इसमें अगर हम देखेंगे, इसको करते हैं इधर, देखो 79 फील्ड क्यों आ गए. देखिए भाई ऐसा क्या है, 79 सारे के सारे, कल तो 78 थे. हमने कुछ नया फील्ड बनाया था क्या वहां पर? अच्छा ये बनाया, ये आया ना इसका सीसाइडी, इस टेबल का जो सीसाइडी आया वो अलग से एक फील्ड आया मेरे पास. ठीक, अब आपको क्या काम करना है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन है काम. इतना अगर आपको फंडामेंटल क्लियर हो गया, आप सभी के सभी, सबको एक्सेस है इस इंस्टेंस का नाउ. मेरे इंस्टेंस का सबके पास एक्सेस है, प्रॉपर एडमिन राइट्स हैं. हाँ जी. यस. आप सबको एक टेबल बनाना है, ठीक है. टेबल बनेगा, उसका मॉड्यूल बनेगा, ठीक है. और आपको क्या ट्राई करना है अभी नहीं मैं बताऊंगा क्योंकि इट विल टेक अ लिटिल टाइम और मुझे थोड़ा सा आज हरी अप भी रहेगा, ठीक है. आपको ट्राई क्या करना है, आपको ट्राई लिंक टाइप करने हैं. चलो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट हमारा क्या आ जाता है. क्लिक हियर, क्या आ गया, लिस्ट व्यू, राइट. आया ना ये, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ServiceNow ने इसको क्या दिया, ये S फालतू लग रहा है, ये ServiceNow S लगाता है फॉर द प्लूरल पार्ट. यू कैन रिमूव दैट S, दैट्स नॉट एन इशू. ठीक है, अपन डिस्प्ले नेम तो शायद चेंज नहीं होगा, टाइटल चेंज होगा या नहीं, हाँ हो गया. ठीक है, देखो उसने क्या किया, लिंक टाइप दिखाया. ये संतोष आई गेस ये आपका क्वेश्चन था पहले कि जब हम सर्च करते हैं और हमें जो ऊपर फिल्टर दिखते हैं वो कैसे मॉडिफाई हो सकते हैं, वो यहाँ जाके मॉडिफाई हो सकते हैं आपके. ओके. ठीक है, तो वो चीज जैसे एग्जांपल लेते हैं,
मेरा इंसिडेंट का, मतलब मेरे पास बताने के लिए इतना कुछ हो जाता है, मेरा को लगता है कि मैं बोलते ही जाऊं बस। असाइन टू मी, लेट्स सी कि क्या क्या कंडीशन दी उन्होंने यहाँ पर। देखो ये रहा, उन्होंने क्या दिया, आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं। आप नॉर्मल अपने फिल्टर कंडीशन डालो, कोई दिक्कत नहीं। देखो इन्होंने भी यही दिया है, एक्टिव ट्री होना चाहिए और असाइन टू इज, ये जावास्क्रिप्ट लिखी जाती है यहाँ पर, गेट माई असाइनमेंट्स, ये फंक्शन है उसका। अगर आपको करना तो आप, क्योंकि रन टाइम पे अगर मैं लॉगिन करता हूँ मुझे मेरे असाइनमेंट्स दिखने चाहिए, अगर संतोष लॉगिन करता है उसको उनके असाइनमेंट्स दिखने चाहिए। सो यू कैन यूज दिस सेम कोड, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। असाइन टू मत रखो, एक्टिव इज ट्रू लिखो, आप डेट का फिल्टर डाल दो, आप ओपन का फिल्टर डाल दो, आप प्रायोरिटी का फिल्टर डाल दो, मुझे वही दिखे जो P4 है, P3 है, P2 है, P1 है मेरे। ये पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड है एक्चुअली। तो वो ठीक। सो अभी हम काम की बात क्या कर रहे थे, मैं दोबारा से उस पर आता हूँ। बता दिया करो यार कि डाइवर्ट हो गया तो हम। आपके 2 होमवर्क हैं, सॉरी 3। पहला, आपको अपना एप्लीकेशन बनाना है, बनाना शुरू नहीं करना, पहले मुझे बताओ फ्राइडे सैटरडे को कि अतुल ये मेरा एप्लीकेशन है, ये मेरे मॉड्यूल्स हैं और ये मेरे फील्ड्स रहेंगे उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन वो शुरू जब होगा, सैटरडे संडे जब शुरू होगा, उससे पहले आपको हैंड्स ऑन करने के लिए आपको कम से कम 1 या 2 टेबल बनानी है मेरे इंस्टेंस के ऊपर, अलग अलग नाम से बनाना सारे, ठीक है, चाहे अपने अपने नाम से बनाना। और आपको इस सारे के सारे लिंक टाइप चेंज करने हैं, चेक करने हैं एक एक करके। न्यू रिकॉर्ड से अरे सेव नहीं किया क्या मैंने? एक मिनट रुको। ये आ गया, देखो वो कितना, अगेन इट इज अ सिस्टम एंड इट अंडरस्टैंड कि भाई मुझे टास्क जब बनता है ना तो वो उसका ये फील्ड्स रहती हैं, तो उसने बाय डिफॉल्ट मुझे ये पेज लाके दे दिया टास्क फील्ड से। इट मींस I only did not inherit the table, I inherit the form view as well। मैंने उसको पूरा फॉर्म व्यू भी पिकअप कर लिया अपने लिए। मतलब कि वो था ना कि इफ आई एम गेटिंग समथिंग फ्रॉम माई फादर और द ग्रैंडफादर, आई एम नॉट जस्ट गेटिंग द एसेट्स, आई एम गेटिंग द लाइबिलिटी एज वेल, आई एम गेटिंग द एवरीथिंग प्लस माइनस जो भी है वो सब मुझे मिलेगा। सो व्हेन आई से एक्सटेंड और I extend it from the task table, then I extend the form as well कि नया रिकॉर्ड कैसे दिखेगा उसका, ठीक है। सो अभी आपका काम क्या रहेगा, सिर्फ हिट एंड ट्रायल, एक एक करके लिंक टाइप चेंज करो और देखो कि क्या फर्क पड़ रहा है। होम पेज पे है, मैप है, न्यू रिकॉर्ड है, रन रिपोर्ट है, आपको ट्राई करना है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी कि तुमने तो चिपका दिया हमारे ऊपर, नहीं। बट आई वांट कि आप इसका हिट एंड ट्रायल करके देखो अभी एक बार। विंडो नाम जो यहाँ पे खुलता है उसका नाम क्या होना चाहिए, मेरा विंडो नेम इज देयर, ठीक। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. संतोष, दीपेश? Yes, sir. I'm clear here. क्लियर ना? और इस पे कोई भी लापरवाही या केयरलेस नहीं चाहिए, ये हैंड्स ऑन चाहिए तो चाहिए भाई, एक बार एटलीस्ट अभी तो ये हैंड्स ऑन चाहिए, उसके बाद आपकी इच्छा है आप करो ना करो, ठीक है। चलो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।